people of India. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ. আমরা ভারতের জনগণ. आम्ही भारताचे लोक. हम भारत के लोग. आम्ही भारतार लोके. ਅਸੀਂ भारत दे लोग. नाम इंडिया मक्कल. हम भारत के आवाम. आम्ही भारतार लोकসমূहे. আমরা ভারতের জনগণ व त्याच्या सर्व नागरिकांस एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य गठन करने निमित्त उहार সকল नागरिक चाहते इंसाफ समाजी माशी और सियासी భావము భావ ప్రకటన విశ్వాసము ధర్మము ఆరాధన படிநிலை மற்றும் வாய்ப்பு சமத்துவம் ஆகியன உறுதி செய்திட അവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ in our Constituent Assembly this 10th day of December 2022. दृढ़ संकल्प होकर हम आज एकीकृत हुए हैं. सबको मेरे तरफ से जय हिंद और जिंदाबाद. आज संविधान दिवस है और हमारे लिए संविधान जिंदगी का सवाल है, क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है. आज के दिन संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ. बाबा साहब की अध्यक्षता में तैयार हुआ. बहुत अच्छा संविधान है. अभी ढंग से लागू भी नहीं हुआ. हमें संविधान सब अधिकार देता है, सब कुछ उसमें है. हमारा रहना, हमारा जीना, हमारी पढ़ाई, हमारा इलाज, हमारा घर का चूल्हा, ये संविधान की देन है. ये नहीं हो तो ये मौलिक अधिकार हमें मिलेगा ही नहीं, हमें हक अधिकार नहीं मिलेगा. लेकिन कुछ समय से एक बड़ी चिंता की बात भी हो रही है कि जब से ये चालू हो गया है कि हम जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है. क्योंकि ये देश संविधान से चलता है. इस देश को आप एक संप्रदाय के लोग मिलके नहीं इसको लागू कर सकते, क्योंकि फिर दूसरों का क्या होगा. तो हमारा सब कुछ जगह है इस संविधान में. तो आज संविधान अगर हमारी रक्षा करता है तो हमें भी संविधान की रक्षा करनी है. सबसे पहले इसको समझना है कि संविधान हमें क्या देता है. वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन वोट का अधिकार के बाद हम हमारा क्या है, क्योंकि जिनको हम चुन के भेजते हैं वही तो जाके इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं. तो हमें ये चेतना आना जरूरी है कि वोट ही सब कुछ नहीं करेगा. हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें संविधान को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा. संविधान हमें बचाएगा, हम संविधान को बचाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. The Constitution has to be understood as the representation of the intent of the state. The state is not the government. Governments change. Every 5 years, you have a different government with a different political ideology, with a different statement of demands it will satisfy. But there are certain principles that the country agreed to when it became independent. And those principles are in the Constitution, and the Constitution is therefore vitally important to us. So we must understand that we celebrate Constitution Day as composite India. India which may have many parties, which may have many ideologies, but we all concur that India will be secular. India will be a country which will fight for secular equality, for equality of all its citizens without caste, gender, religion or any bar. And that's why the Constitutional Day is a special day for rejoicing. Let's also realize that this Constitution was made by a very excellent team of people led by no less than Dr. B.R. Ambedkar, who had the concurrence of both Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi for building a construct of India as a secular state. So today we rejoice in the intelligence of India, in the broad-mindedness of India, in the secular nature of its India, of understanding plurality of languages and religions. Today, a small plurality will be in front of you in the many languages in which we will speak. So today we celebrate being an Indian republic, being an assertive population of people with mixed cultures and mixed religions, making one strong statement that we will believe in equality, liberty and fraternity.
നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളായി ജനതയായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പ്രമാണപത്രമാണ് ഭരണഘടന. നീതിയുടെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അസാധാരണമായ പ്രഖ്യാപനം. നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും മുങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ടെന്ന് തുടർച്ചയായി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏക അത്താണി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുമുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണവും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന നീതിയും, ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും, ഭരണഘടന നൽകുന്ന തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും വളരേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകളെയും എല്ലാത്തരം ചെറിയ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും വലിയ മനസ്സുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യതയോടുകൂടി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി, സമാധാനത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ജീവിക്കുവാനും വളരുവാനുമുള്ള ഒരിടമാണെന്നുള്ളത് ഈ ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും പൗരന്മാരെന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമുക്കിനിയും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തും വരെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. అందరికీ నమస్కారం. రాజ్యాంగం సమకాలీన భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. మన ప్రజాస్వామ్య దేశానికి పునాదిలా పనిచేస్తుంది. నేటి భారతదేశంలో ప్రస్తుత పాలనా వ్యవస్థ కారణంగా రాజ్యాంగం పాత్రకు గతంలో కంటే ఎక్కువ శక్తి ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. సామాజిక సమానత్వం మరియు న్యాయం కోసం పెరుగుతున్న అవసరాన్ని బట్టి ఇది దేశంలో నివసిస్తున్న పౌరులు రాజ్యాంగ విలువలు మరియు ప్రాథమిక హక్కులు సమర్థించడం చాలా ముఖ్యం. ఇందులో మైనారిటీల రక్షణ, అట్టడుగున ఉన్నవారికి మరింత బలం సమకూర్చడం మరియు మహిళలకు సాధికారిక కల్పించడం వంటివి ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న పాలనా దృశ్యంలో ఈ రోజు లేదా ఏ రోజైనా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలు ప్రాముఖ్యత కాపాడడంలో మరియు ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో రాజ్యాంగం అత్యంత కీలకం. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਮਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਏਵਮ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦਿਵਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਡੀਟੇਲਡ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। 196 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਓਰਲ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ
संविधान करता जिहड़े सीगे वो ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी भी सीगे ते उन्होंने बहुत दानिशमंद लोग सीगे जिन्हों ने बहुत हिसाब नाल डिस्कशन करके ढंग नाल इस संविधान की रचना की हैगी है। यह संविधान लचीला भी है, कठोर भी हैगा। लचीला इस करके कि इहदे विच संशोधन किए जा सकते हैं, कठोर इस करके कि वो बहुत तरीके नाल मुश्किल दे नाल उन्हां विचों संशोधन किए जा सकते हैं। बहुत आसान नहीं है कि तुसीं एवें चुक के संशोधन कर दो। भारत के सारे जिन्ने भी साडा राज्य हैगे ने उन्हां नूं संघ दे विच मैंडेटरली इंकलूड किया हैगा। कोई भी राज्य अपनी मर्जी दे नाल वख नहीं हो सकता और उस तो इलावा सारे नागरिकों के मूलभूत अधिकारां की विस्तारपूर्वक व्याख्या इस संविधान विच कीती हैगी है। धर्मनिरपेक्षता इस संविधान का एक खास पहलू हैगा जिन्हों 42वें संशोधन के नाल जोड़िया गया सीगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका इस संविधान की खास एक पेशकश हैगी और हर जिहड़ा नागरिक हैगा उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता दिती हैगी है। बहुत सारी कंट्रीज़ विच ड्यूअल नागरिकता हैगी बट साडे विच इक्को ही हैगी है ताकि देश जिहड़ा हैगा वो इकट्ठा रहे, वख-वख ना होए। आपातकालीन अधिकार एमरजेंसी पावर्स प्रेजिडेंट दी वो भी डिटेल विच दिती हैगी है। पावर्स नूं बहुत क्लीयर कट तरीके नाल डिवाइड किया हैगा कि किवें राज्यां दी पावर्स डिफाइन की जाएगी, किहड़ी केंद्र दी पावर हैगी है और जे अगर कोई विचकार इन्हां दे विच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो किवें सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा हैगा वो उन्हां दे निपटारे करेगा। न्यायपालिका, विधान सभा, इन्हां दी प्रणाली ते कार्यकारिणी जिहड़ी हैगी है, कार्यकारजी जिन्हों असीं पंजाबी विच कहंदे हैं, उन्हां दी ताकतां दी वंड भी बहुत साफ सुथरे तरीके नाल डिटेल दे विच इन्हां विच कीती हैगी है। ते यह वो ढांचा हैगा जिहदे उत्ते सारे देश नूं माण होना चाहिए हैगा। अंग्रेज़ जांदे हुए मन विच यकीन लैके गए थे कि हिंदुस्तान ज़्यादा टाइम तक आज़ाद रहेगा नहीं, लेकिन मेरा अपना परसनल मनना यह हैगा कि इन्ना एलैबोरेट इन्नी डिटेल विच जिहड़ा संविधान असीं क्रिएट किया और उन्होंने इंप्लीमेंट किया उहदे करके ही इन्ने सारे डिविजनस होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जनता दे विच अज तक असीं आज़ाद हाँ, असीं ग्रोथ लिती है और दुनिया की एक बहुत तगड़ी ताकत बनते जा रही है। तो इस करके इस देश नूं पूरे जश्न दे नाल संविधान दिवस मनाना चाहिए हैगा और आने वाली अपनी नस्लों नूं भी इस गल का समझाना करना चाहिए हैगा कि संविधान कितनी ज़्यादा प्रमुखता रखता हैगा साढ़े सारियां दी जिंदगी विच। सत श्री अकाल जी। வணக்கம். நம்ம நாட்டில் வர 26 நவம்பர் 2023 வருடங்கள் நம்ம அரசியல் அமைப்புக்கு 74 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது. இதே நாள் 1949 வருடம்ல இந்த அரசியல் அமைப்பு நாட்டுக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் ஒப்படைச்சார். நம்ம நாட்டில் பல்வேறு மதம், மொழி, ஜாதி உள்ளது. ஆனால் மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் கொடுத்த அரசியல் அமைப்பு. இந்த அரசியல் அமைப்பில் அடிப்படை உரிமை, அடிப்படை கடமைகள் கூட வெளிக்காட்டு நெறிமுறைகள் இருக்குது. இந்த மூணுல வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதனால நம்ம நாட்டில் மக்கள் உரிமை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கலாச்சாரம் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு மக்கள் உரிமை, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால நம்ம நாட்டில் அமைதி மற்றும் சுகாதாரம் இருக்குது. அரசியல் அமைப்பினால இந்த நாட்டில் வெற்றி மேல ஒற்றுமை இருக்குது. அதனால இந்த அரசியல் அமைப்பை பாதுகாப்புறது நம்ம கடமை. வணக்கம்.
भारत के संविधान अपनावे के याद में संविधान दिवस के एक शुभ अवसर पर समस्त साथी नागरिकन के हमार प्रणाम। आज के ही दिन 72 साल पहले संविधान के रूप में बाबा साहब हमनी के एगो न्यायपूर्ण समावेशी समाज के खाका देले रहन। संविधान खाली एगो कानूनी दस्तावेज ना ह बल्कि एगो नैतिक दिशा निर्देश ह जवन एगो राष्ट्र रूप में हमनी के यात्रा के मार्गदर्शन करेला। ई हर नागरिक के मौलिक अधिकार के गारंटी देला, चाहे वो कौनो पृष्ठभूमि से होखे। हमनी के आज के भारत में संविधान के भूमिका के और भी मजबूत करे के जरूरत बा। सामाजिक समानता और न्याय के बढ़त जरूरत के चलते हमनी के संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकार के समर्थन कईल बहुत जरूरी बा। आई हमनी के एह अधिकारन के कायम रखे के अपन प्रण नवीकरण करी जा आ ऐसन समाज खातिर प्रयास करी जा जहां न्याय होखे। हमनी के अपन संविधान में समाहित लोकतांत्रिक सिद्धांतन के सजो के राखी जा आ मिलजुल के एगो मजबूत राष्ट्र के निर्माण करी जा जहां केहू पीछे न छूटे। भारत के गौरवशाली नागरिक के रूप में हमनी के अपन संविधान के आदर्श के कायम रखे के प्रयास करी जा और सबके खातिर समावेशी संपूर्ण और समृद्ध भविष्य के दिशा में काम करी जा। जय हिंद। संविधान दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কথা কওঁ তেনেহলে ভাৰত এক বৈচিত্ৰ্য হিচাপে সংবিধানৰ বাবে এক নথিপত্ৰই চৰকাৰৰ সকলো কাৰ্যকলাপখিনি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক পথ হিচাপে কাম কৰে। বিশেষকৈ সম্পদ আৰু দায়িত্ব বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ সৰ্বোচ্চ আইন হোৱাৰ বাবে আমাৰ সংবিধানে দেশৰ গাঁথনি, চৰিত্ৰ আৰু ধাৰণা নিৰ্ধাৰণ কৰে। সংবিধানৰ আন্তঃগ্ৰাল অংশত উল্লেখ কৰা মূল্যবোধসমূহ যেনে ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃত্বই আমাক এনে এখন সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰে যেনে এখন সমাজ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে সপোন দেখিছিলে। সংবিধানখনৰ কিছুমান অংশ যেনে অংশ 3 আৰু 4 যিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমতাৰ বিষয়ে কয়। বৰ্তমান সময়ৰ বিকশিত প্ৰকৃতি অনুসৰি আইনবোৰ ভালদৰে প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ হোৱা স্বত্তেও ভাৰতে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিখিনি অগণতান্ত্ৰিক প্ৰকৃতিৰ, যেনে মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অন্যায়, জনজাতিৰ বিষয়ে অপৰাধ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। এনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক নীতিৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশনা নীতিৰ দৰে ব্যৱস্থাবোৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে আইনৰ সন্মুখত সমান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰে, আইনৰ সন্মুখত সমান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। লগতে ভাৰতক এক কল্যাণমুখ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলি সমাজত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক সুৰক্ষা আৱৰণ হ'ব পাৰে। সেয়েহে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবৰ বাবে সংবিধান এক সঠিক নিৰ্দেশনা পুথি হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমার নাম নিশার। সবাইকে সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা আর শুভকামনা থাকলো। সংবিধানে দিয়া যত মৌলিক অধিকার আছে সেই মৌলিক অধিকারগুলা আমাদের জীবনে বহুত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই মৌলিক অধিকারগুলা আজকের দিন আমরা কত উপভোগ করতে পারছি সেটা সবাই জানে। যদি আমরা কোনো জাতিগত বা সামাজিক বা ধার্মিক বা বর্ণভিত্তিক কোনো বৈষম্যতা হয় আর সেই বৈষম্যতার জন্য যদি কেউ আওয়াজ উঠায় তাহলে আমরা দেখতে পারি কি আমাদেরকে জাতি বা ধর্ম ভিত্তিতে আমাদেরকে সরকারে অত্যাচার করে বা পুলিশে বা ধৈর্য নিয়ে যায়। কিন্তু যদি এই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন বা মৌলিক অধিকারগুলো যদি আমাদের না থাকে তাহলে কি হবো, কোনো সমস্যা বা কোনো অত্যাচার যদি আমাদের সাথে হয় সেই অত্যাচারের জন্যে সরকার অ্যাকাউন্টেবল না, সরকার দায়ী না। কারণ আমাদের যদি মৌলিক অধিকার না থাকে আমরা আমাদের যত সমস্যা বা আমরা যত বৈষম্যতা আমরা আমাদের জীবনে আমরা ফেস করি বা দেখি তো সেইগুলো আমরা সরকারের পক্ষে বা সরকারের সামনে আমরা রাখতে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে বহু জায়গায় ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের কীভাবে মিস ইউজ হয়। কারণ এই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের জন্যে যত আমাদের অধিকার আছে অধিকারগুলো যদি আমরা এক্সপ্রেস করতে না পারি
এটা একটা পিসফুল প্রটেস্ট হইতে পারে বা কোনো র্যালি হইতে পারে, এটা যে কোনো কিছু হইতে পারে। তো তার জড়িয়ে যদি আমরা এটা সরকারের পক্ষের সামনে যদি আমরা রাখতে না পারি, তাহলে আমাদের যে কোনো সমস্যার সমাধানের কোনো একটা রাস্তা বা একটা কোনো পথ বাইর হবো না। কারণ যদি আমাদের সাথে এরকম অন্যায় হয়, এই অন্যায়ের আমরা ন্যায় পাই না। আর আমরা দেখতে পাই যে আজকাল যুগে বা আজকাল জামানায় বহুত এরকম হয়ে থাকে যে এই মৌলিক অধিকারগুলো পালন করতে পারে না, আর মৌলিক অধিকার উপভোগ করতে পারে না। তার সাথে সাথে যত অত্যাচার হয় সেই অত্যাচারের ন্যায়ও পায় না। তো আশা করি এই সংবিধান দিবসে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পাওয়ারে না থাকুক কেন, সেই পলিটিক্যাল পার্টিগুলা সাধারণ জনতাকে সংবিধানে দেওয়া মৌলিক অধিকারগুলা পালন করতে দেয়। এই পালন করতে দেওয়াতে যাতে সরকারের কোনো আপত্তি না থাকে, কারণ সংবিধানটা সাধারণ জনতার জন্য বানানো হয়েছিল। আরও যে কোনো রাজনৈতিক দলে পাওয়ারে না থাকুক কেন, যাতে সাধারণ জনতাকে মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে দেয়। আরও মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতে দেওয়াতে যাতে কোনো সরকারের আপত্তি না থাকে। সবাইকে সংবিধান দিবসে शुभेच्छा থাকলো। धन्यवाद। नाइटपतर ममता मरकाम, छत्तीसगढ़, सुकमा जिला, उन सुटीलतनार धोबनपाल दिनसो नन्ना, सभी तोड़किन जय जोहार, जय संविधान, जय भीम। नेन संविधान दिवस हूँ अदिन के मैदो नन संविधान दिवस ते सबसे मुन्ने नन बाबा साहब अम्बेडकर ने याद की था ना। बालक ते जो कहते के मन देश तक संविधान ते नेट तक दिनाते बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा तक मन देश तर राष्ट्रपति इतर नेट तक दिनाते मन देश राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी इतरो अदिन के मैदो मन देश चले माया होता। और मन कीन SC ST अनुसूचित जाति जनजाति 3 बड़े हक अधिकार दొరుకుతా। अदिन के मैदो मनल नेन वेहती तल सुबह तोड़ के मुन्ने वेहती तल बंडे जगतिन सो जगतक दायवन परदी तला मनकिन संविधान ते हक अधिकार दొరుకుతా। लेकिन नेंड इत संविधान तीन खत्म की न दी जो बेटे माने सोचे मायम तो मन देश तरोड़। लेकिन मन देश तक संविधान खत्म अत्तर कसोने मन की नके नुकसान आता। बालक ते जो कहत के मन आदिवासी जनजाति 3 मैदो बातें हक अधिकार दొరుకు। अदिन के मैदो मनल सुबह तोड़ के उन जुट आसमंज संविधान 3 बचा की नाद असुटे मन देश बच माता। और मनक आने वाले मनल वायनद पीड़ित 3 बड़े औरत भविष्य 3 मैदो बड़े नला पढ़ाई 3 मैदो बड़े सभी चीज़ सुख सुविधा दొరికి था। ये लोग कसन संविधान ये लोग कसन मुने तदमोड़ मनुस्मृति और पितृसत्ता वत्तरु कसोने मनक बातें वेंडे अधिकार दొరుకు। अदिन के मेदो संविधान 3 बचा की मूट और देश 3 संविधान बचा की मूट और देश बचा की संविधान बचा के देश बचे माता। तो सभी तोड़ की नेन संविधान दिवस ते इदे कति तन की संविधान बचा की मु देश बचा की मु। और जय संविधान जय भीम। ओके स्टार्ट। नमस्कार, मी प्रणाली पराते। आज आपण भारताच्या संविधानबद्दल संविधान दिवस साजरा करणार आहोत, म्हणून त्याबद्दल बोलूया। आम्ही भारताचे लोक बघा, संविधानाने तर खूप सारे अधिकार आपल्याला मिळवून दिले। संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 ला ज्या दिवशी लागू झाला, त्या दिवशी आपल्याला भारत देश म्हणून भारत देशाची एक जाणीव झाली। आपले हक्क, आपले अधिकार, माणसाचे हक्क, माणसाचे अधिकार ते सगळे आपल्या जवळ आले।
संविधानाने महिलांसाठी व पुरुषांसाठी जो हा भेदभाव होता तो नष्ट केला। संविधानाने सर्व धर्म समान ही आपल्याला जाणीव करून दिली। संविधान आपल्या जीवनात एक आपला जो अधिकार, चुकीचं काय, खरं काय, अजून काय वाईट, काय आपल्या विरुद्ध होत आहे, अजून का अधिकार आपल्याला आहे, त्याबद्दल ही जाणीव आपल्याला संविधानाने करून दिली। आपल्या भारत देशात काही जातीचे लोक, काही धर्माचे लोक, काही संस्कृती, काही विभिन्न प्रदेशात विभिन्न लोक राहतात, पण आपण कोणत्या पण ठिकाणी वावरू शकतो हा अधिकार आपल्याला फक्त ना फक्त संविधानाने दिला। तर मी ह्या संविधानाची नेहमी आभार व्यक्त करेल, अजून धन्यवाद देईल की आपण माणूस एक आहो, कोणताच माणूस वेगळा नाही। धर्म, जात, पंथ हा संविधान हा पूर्ण जो हा सगळा भेदभाव आहे तो नष्ट करतो। अजून आपल्याला एक वोटिंग राईट, जो मतदानाचा अधिकार आहे तो आपल्याला संविधान देतो। म्हणजे लोकशाही, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, समता हा अधिकार फक्त आपल्याला संविधानाने दिलेला आहे। तर त्याबद्दल आपल्या भारतीय संस्कृती, अजून भारताचं संविधानाचं नेहमी आभार राहील। त्याबद्दल संविधानाला नमन, ह्या भारत देशाला नमन। हा भारत देशाचं संविधान ज्यांनी तयार केलेलं आहे, ज्यांनी लागू केलेलं आहे, त्या अशा महापुरुषांना नमन। तर धन्यवाद। हॅपी कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू, धन्यवाद। सब ने गणा गणा राम सलाम, नमस्कार, आदाब, जोहार, जिंदाबाद। भाई मु तो राजस्थान को रहने वाला हूँ और भेड़ बकरी चराता बचपन में। स्कूल जाने को मैंने मौका नहीं मिले, पढ़े लिखे नहीं हूँ, पर खेती, पशुपालन और गांव में रहिए तो गांव का अनुभव मार्गन है। तो मैं अपना बात बताऊं कि गांव की जिंदगी में सब जना मिलकर साथ चले तो गांव सही रहे और गांव सही आगे बढ़े। बयान ये कर अपनो देश आजाद हुयो, अपनो देश आजाद होने के बाद अपना देश का लोगों पर जिम्मेदारी आई कि इन्हें क्या चलाना, तो इसके लिए संविधान लिखवा की बात हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हाँ, और बैंक के साथ 250-300 लोगों की एक कमेटी ही, जिसमें बहुत सारा महिला और पुरुष मिलकर आपकी राय दी। पूरा देश भर में आपको विचार लियो और भी आधार पर बने अपना भारत को संविधान। और संविधान को मतलब है देश ने चलाबा का नियम, कानून, कायदा भी किया किताब बने। और आ किताब मारा विचारों शास्त्रों भी ऊंची है, जो अब तक पहली है। कोई धर्म शास्त्र की अगर बात करा तो वो एक धर्म की बात करी, पर वाकई अपनो संविधान जिसमें सगला धर्माना आदर मानबो, सब लोगों का जो विश्वास है, जो को व्यवहार है, जो की अभिव्यक्ति है, जो खेबो चाहो जो रक्षक है बात ने, आपके जीपा को ढंग, आपके पैराण की आज़ादी और एक दूसरा ने साथ रह, एक दूसरा के साथ मिलकर देश ने आगे बढ़ावा की बात में शामिल होना, आ बात संविधान में मानी गई। तो जो अपना संविधान है साक्षात पूरा देश को एक मिलो जुलो रूप है, और इस संविधान से ही आप एक अच्छा नागरिक बन सका हाँ, और अच्छा दुनिया ने साथ ले चाल वाली बात आप कर सका। तो अपना संविधान न मानबो, पूरा धर्म न मानबो है, पूरी जाति और हर वर्ग को आदर करबो है। तो अपना संविधान अतरो दमदार है, केवे के दुनिया में लिखित में सब बड़ो संविधान भारत देश को है। तो बात पूरी किताब की नहीं होनी चाहिए, जब बात है ही उतार वो आपके के जो संविधान कह रहे है वो आप हिया में उतारा। जब संविधान की बात आप हिया में उतारा, संविधान केवल ज्ञान आपा जीवा
तो पच सबको भी में सम्माननीय है। तो संविधान बचाओ, देश बचाओ और दुनिया बचाओ। भारत का संविधान ही भारत है। हम भारत के लोग, जिससे वो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, भारत के लोगों के सोच, उनके सपने, उनके संकल्प, उन सारे चीज़ों को अंकित करता है। और हम लोगों का प्रयास यदि एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, दोस्ती और एक तरीके से बंधुता के रूप में, तो वो है कि हम एक दूसरे की मदद करें कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हर भारतीय को, नागरिक को मिले और हमारा शासन प्रशासन मोटे रूप में नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार चले। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ और हम एक गणराज्य बने। और उस गणराज्य को आगे चलाने का काम लगातार चल रहा है। कई लोग कहते हैं संविधान बचाओ, देश बचाओ। उसके साथ साथ हमें ये भी कहना है कि संविधान चलाओ, देश चलाओ। चिट्टे कपड़े असी मिलड़ा वेस करे सा लोग करंदे चिट्टे कपड़े ला 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 लोग करंदे चिट्टे कपड़े ओ असी मिलड़ा वेस करे सा गुलाम फरीदा यार तने अंगणिया से असी हार सिंगार करवे सा किथ कनु आया किथ कनु वेसी किथा तेरा जम्मा ला 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 किथ कनु आया किथ कनु वेसी ओ किथा तेरा जमा चपे चपे ते दाढ़ी रखी तू परण्या है कवारा अबे कनु आया लम्बे कनु वेसी तखत हजार मेरा जमा ला 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 भलो अबे कनु आया लम्बे कनु वेसी हो तखत हजार बिना जमा चुचक दे घर हीर सुनिए असी तने फिरा कवारा बेड़ा यार सौदा गराईंदा तने सैर लाहौर दा घुमदा बेड़ा यार सौदा गराईंदा बेड़ा यार सौदा गराईंदा तने सैर लाहौर दा घुमदा बेड़ा यार सौदा गराईंदा अंगणे आयो दिल जानी ओ अंगणे आयो दिल जानी
आज हम लोग संविधान का गठन जो किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पकड़ाया था, उसके हम आज उत्सव मना रहे हैं। तो 26 नवंबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस देश की आज़ादी का कल्पना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे मिले हुए इतने सारे लोगों ने मिलकर किया, जिसकी सहमति जवाहरलाल नेहरू की भी थी, महात्मा गांधी की भी थी, कि हमारा एक पंथ निरपेक्ष देश होगा जिसके मिश्रित संस्कृति, जिसके मिश्रित सोच, संस्कृति के अलावा धर्म, जितने भी हमारे उपासना के जितने भी अलग अलग तरीके हैं, सबको बराबरी का हक मिलेगा। इस बराबरी के हक का उत्सव मनाते हुए आज का दिन हम लोग मनाते हैं। हम एक चीज़ समझें, जिसको हम चुनाव से सरकार बनाते हैं, सरकार और सत्ता में फ़र्क है। सत्ता वो है जो हमारे देश को बताता है, हमारे सरकार बनाने वाले लोगों को बताता है, हमें पार्टियों को बताता है, देश को बताता है, नागरिकों को बताता है कि हम कैसे इस देश को चलाएंगे। तो कोई भी चुनाव में कोई भी पार्टी चुन के आ सके, अगर कोई भी पार्टी चुन के आवे तो उसके लिए एक संविधान, एक बंधन है, एक दिशा देने वाला एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से आगे वो नहीं चल सकते। इसके लिए हम लोग संविधान को ऊंचा मानते हैं, संविधान को प्रथम मानते हैं, और पार्टी इससे नीचे है। तो सरकार और सत्ता में फ़र्क लाना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच में ये बात कह रही हूँ, और आपको इस देश को इस ग्रंथ से आधारित एक देश बनाना आपका कर्तव्य है। सबको मेरे सब तरफ से जिंदाबाद और नमस्कार और सलाम। संविधान संदेश को, संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक, लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश, लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम है, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम है, आस्तिक और नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है, आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, संविधान के मूल को, संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। हम देश हित में, हम देश हित में बंधुता मजबूत बनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे।